Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start the chapter which name is The Invisible Man. So, if you could have a special power, what would it be? Read this play based on a sci-fi novella, a short novel of the same name. Okay, so this is related to science fiction and it tells the story of a scientist who becomes invisible but fails in his attempt to reverse the process. जो एक साइंटिस्ट जो है वो इनविजिबल तो हो जाता है लेकिन विजिबल नहीं हो पाता, तो ये प्ले जो है उसी मैन का है, द इनविजिबल मैन. सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स in the play? About the narrator, then Dr. Seuss and Griffin, first man, Mrs. Hole, second man and Jimson. So narrator starts the story. Narrator जो story सुनाता है. Fine. So late one stormy night, the stranger appeared early in February carrying a black travelling bag in his thickly gloved hand. एक stormy night यानी कि एक तूफानी रात को एक stranger जो है अपने हाथ में briefcase लिए हुए gloved hand यानी उसने glove पहन रखे थे, वो वहाँ से जा रहा था. He was wrapped up from the head to foot and the brim of his soft hat did every inch of his face except for his eyes which were covered by smoked glasses. और ऊपर से नीचे तक वो पूरा covered था, right? और उसकी hat जो है उसका पूरा face उसने cover कर रखा था hat से, सिर्फ eyes को छोड़कर. eyes में भी उसने क्या पहन रखे थे? goggles पहन रखे थे, glasses पहन रखे थे. So he staggered into the coach and horses in, more dead than alive, with snow piled on his shoulders. Mrs. Hole, the innkeeper wife, thought she had never seen such a strange looking guest. और इस तरीके से वो उनके घर में जाता है और लड़खड़ाते हुए, है ना, और उसने देखा कि ऐसा गेस्ट तो मैंने कभी भी नहीं देखा. But at this time of the year travelers were scarce and she was in no mood to caution the stranger's appearance. लेकिन वो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती. Griffin roaring out, a fire in the name of charity, I want a room and a fire. Mrs. Hole, if you can pay, sir, I am certain you will find my inn comfortable. और इस तरीके से वो क्या कहती है कि अगर तुम पे कर दोगे तो देख लोगे मेरी इन जो है यानी मेरा रूम जो है वो कंफर्टेबल लगेगा. Griffin, I can pay well enough. Here take 3 sovereigns. sovereign क्या होते हैं? गोल्ड कॉइन. तो इस तरीके से वो कहता है कि मैं अच्छे से पे करूंगा और वो 3 गोल्ड कॉइन जो है उसको दे देता है. मिसेस होल सरप्राइज्ड, 3 sovereigns? Yes sir, right away sir, please come this way and I will show you the finest room we have. और इस तरीके से वो अपने होटल में बुलाती है और कहती है कि yes please come और मैं सबसे अच्छा रूम आपको दिखाती हूँ. Griffin, it needed not be fine and just so long as there is a fire and a good stout door with a lock. मुझे सिर्फ अच्छा रूम ही नहीं चाहिए, मुझे उसमें फायर भी चाहिए और उसके साथ साथ स्टाउट डोर यानी कि स्ट्रॉन्ग डोर होना चाहिए जिसमें एक लॉक भी लगा हो. आई विश टू बी वार्म्ड एंड फेड एंड लेफ्ट अलोन. मुझे अकेले रहना है, मुझे वहाँ पर गर्मी चाहिए, इसीलिए मुझे वहाँ पर फायर चाहिए. तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? विंटर सीजन है, राइट? एंड फेड, मुझे खाना खाना है और मुझे अकेले रहना है. Mrs. Hall, yes sir, I will have the porter light a fire immediately. Pose, will this room suit? और इस तरीके से वो रूम दिखाती है. Griffin, yes, it will do perfectly. And Mrs. Hall calling out, Jimson, a gentleman in room 8, Jimson, come light a fire quickly and he will be here at once sir. So Griffin, he can't get here soon enough to suit me. I am almost frozen. Mrs. Hole, I should think so, sir, travelling on such a night as this. If you will excuse me, I will seat you to some supper for you. कि मैं 2 मिनट में आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ. इतने जो है वो जेंटलमैन जो है जिम्सन वो फायर जला देगा. So Griffin, I'll excuse you, right enough. Mrs. Hole, may I take your hat and cloak, sir, to dry them out by the kitchen fire?
यू आर soaked through, I shouldn't wonder। और वो क्या कहती है कि तुम पूरा भीग गए हो, क्या मैं हैट और क्लोक जो है वो ले लूँ, वो मैं किचन फायर में उसको ड्राई कर दूंगी। ग्रिफिन, नो आई प्रेफर टू कीप देम ऑन एंड आई डोंट वॉन्ट पीपल हैंगिंग अबाउट, कि मैं नहीं चाहता इनको मेरे पास रहने दो, मैं नहीं चाहता मेरे आसपास लोग घूमे। Mrs. Hall, often, very good sir, you need not be so touchy, I was only trying to be sociable। तो इस तरीके से मिसेस होल क्या कहती है कि आपको टची होने की, मतलब इतना सोचने की ज़रूरत, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रही थी वेलबींग के लिए। So Griffin, I do not look for sociability at all. I will pay you handsomely for my lodgings and never fear. For the rest, you have only to leave me alone। कि मैं अच्छे से पे करूँगा, मुझे कोई सोशबिलिटी नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ अकेला रहने दो। I have a lot of work to do and I wish to do it in peace. I fancy this place will suit me. It's quiet, it's remote and I am not likely to be interrupted। और मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, ये प्लेस काफ़ी रिमोट है यानी कि दूर है और काफ़ी यहाँ पर साइलेंस भी है, तो मुझे कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए। आई ट्रस्ट मैडम एंड दैट आई मेक माई सेल्फ क्लियर बिफोर हैंड, और मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है। आई विश टू बी लेफ्ट अलोन, अटरली होली कम्प्लीटली अलोन, कि मुझे हर तरीके से अलोन रहना है, मेरे आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। सो नैरेटर क्या कहते हैं, द स्ट्रेंजर गॉट हिज विश, और स्ट्रेंजर जो चाहता था वो उसको मिल गया, एक्सेप्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ बोन, बट by the porter Jimson, his door remained closed and for 2 days none but the porter had so much as a glimpse of him, and even the porter had strange things to tell of what he had seen। और एक पोर्टर ने बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेंज चीज़ें देखी उसके रूम में। सिर्फ डिलीवरी ऑफ बॉन उसको नहीं मिलता, बॉन की डिलीवरी उसके रूम में नहीं होती, बाकी उसको जो भी उसे चाहिए था उसे सब चीज़ें मिल जाती हैं। Jimson, he kept his back to me the whole time and wouldn't let me see so much as a centimeter of his face. Got me to wondering, I tell you, I kept cautioning him and making observations about the weather until I thought he had burst. He was so anxious for me to get out of the room. At last he couldn't control his anger and he whirled around, and hard to believe it, he talked to me through a handkerchief, held the thing right up to his face like he didn't want me to see him, asked me what I think he is invisible। सो बच्चे, जिम्सन क्या कह रहा है, जिम्सन कह रहा है कि वो उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है, आज तक मैंने उसका 1 इंच भी फेस नहीं देखा है। जब भी वो मुझसे बात करता है वो हैंग के अपने फेस पर रखकर बात करता है या चीज़ों को अपने आगे रखकर बात करता है। क्या सोचता है वो, क्या वो इनविजिबल है, हम उसे नहीं देख पा रहे। मिसेस होल लाफिंग, Lord save us all, invisible you say, you are a superstitious old fool Jimson, your mind must be a wandering, कि तुम्हारा दिमाग जो है इधर उधर घूम रहा है, क्या वो इनविजिबल है। नैरेटर, तो मिसेस होल स्कॉफ्ड एट जिम्सन, और इस तरीके से मिसेस होल है वो जोर से बोलती है जिम्सन को। हर क्यूरियसिटी अबाउट द स्ट्रेंजर चेंज्ड ग्रेजुअली टू फियर, और एकदम से डर भी जाती है कि ऐसा क्यों है। सो द लिटिल टाउन ऑफ लैपिंग क्विकली came to accept the men at the inn as a constant topic of conversation, but after a week a new mystery broke out which occupied everyone's attention, and conversation was now given over to the rash of burglaries that had erupted in the neighborhood। अब एक नई चीज़ सामने आती है। The police found themselves helpless and there were no evidence of any kind. Sums of money just seemed to vanish into the thin air, and several weeks went by, and then one day Dr. Seuss, who had been going from house to house taking up a collection for the new nursing home, came running down the stairs of the coach and horses, his eyes ablaze with fright। और इस तरीके से वो एकदम से वहाँ से गुम हो जाता है, वैनिश इन द एयर। और एक दिन जब डॉक्टर उसके लिए अपने नर्सिंग होम के लिए मनी इकट्ठा करने आता है तो वो एक साइट देखकर काफ़ी डर जाता है। मिसेस होल कंसर्न, व्हाट हैपेंड डॉक्टर सूस, यू लुक एज थो यू वुड सीन अ घोस्ट, कि क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई घोस्ट देखा हो। डॉक्टर सूस, इट्स अ वर्स मिसेस होल, वर्स, द मैन इन रूम मेट।
मिसेस होल, डिड ही स्केयर यू ऑफ, क्या उसने तुम्हें डराया है? He is extremely particular about being left alone. I should have warned you. मैंने पहले भी बताया है कि वो अकेले रहना चाहता है. डॉक्टर सुस, I thought I would go in to see him for a minute, कि मैं 1 मिनट के लिए उसको जाकर देखूं. And I thought he might give me something for the collection. क्या पता वो मुझे कुछ कलेक्शन के लिए पैसा दे दे. I knocked on the door and waited. There was no answer. Mrs. Hall, perhaps he didn't hear you. शायद उसने तुम्हें नहीं सुना. डॉक्टर सुस, जस्ट वट आई थॉट माई सेल्फ, सो आई टुक द लिबर्टी ऑफ वॉकिंग इन. तो क्या मैं अंदर जाके देखूं? He was working, and the minute he heard me behind, he jammed both his hands into his coat. और वो कुछ काम कर रहा था, जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपने दोनों हाथ जो हैं पॉकेट में डाल लिए. बट नॉट बिफोर आई वॉज एबल टू सी ही हैड नो हैंड्स. मिसेस होल, और मैं देख पाता कि उसके तो हैंड ही नहीं थे. देयर वर जस्ट 2 एम्प्टी स्लीव्स, सिर्फ 2 एम्प्टी स्लीव्स थी. एंड व्हेन ही टर्न्ड अराउंड आई सो समथिंग मोर स्केरी. ही हैज़ नो फेस. और जब मैंने उसको देखा, वो मेरी तरफ मुड़ा, तो मैंने देखा उसका तो फेस भी नहीं है. एंड द मैन इन रूम 8, नो हैंड्स नो फेस. और जो रूम नंबर 8 में जो स्ट्रेंजर रुका है, ना ही उसके हैंड्स हैं और ना ही उसका फेस है. जस्ट एम्प्टीनेस, एंड यू कैन सी राइट थ्रू हिम एक्सेप्ट वेयर देयर इज क्लोथिंग कवरिंग हिम. सिर्फ उसके क्लोथ हैं जिससे उसने कवर किया हुआ है. दैट इज वाई ही ऑलवेज वियर्स द बैजेस एंड द हैट. इसीलिए वो हमेशा अपने आप को कवर करके रखता है, हैट पहनता है और बैंडेज जो हैं वो लगा कर रखता है. एंड द स्मोक ग्लासेस, और स्मोक ग्लासेस पहन कर रखता है. मिसेस होल, ओ मिसेस होल, जिम्सन वॉज राइट. तो इस तरीके से बात करते हैं. वो जिम्सन जो है वो ठीक कह रहा था. जिम्सन ने मुझे पहले ही बताया था कि कुछ तो स्ट्रेंज है रूम नंबर 8 में. ही इज एन इनविजिबल मैन. नैरेटर, The strange story told by Dr. Seuss spread like wildfire. और जो डॉक्टर ने स्टोरी सुनाई वो हर जगह आग की तरह फैल गई. एंड मोस्ट पीपल रिफ्यूज टू बिलीव इट. कुछ लोग मना कर रहे थे, ये मानने में बिलीव नहीं कर रहे थे. इट वॉज टू preposterous, but suddenly it seemed to explain the petty thieveries that had been going on. How else could they have been managed except by an invisible burglar? And a deputation of townsmen was soon formed to arrest and capture the incredible invisible man. और इस तरीके से एक ग्रुप बनाया गया, टाउन्समैन ने एक ग्रुप बनाया ताकि उसको अरेस्ट कर सकें और उस इनविजिबल मैन को, स्ट्रेंज मैन को पकड़ सकें. डॉक्टर सुस, इन अ विस्पर, शुड वी नॉक ऑन द डोर और बर्स्ट राइट इन. क्या हम नॉक करें या एकदम से उसके ऊपर कूद पड़ें? जिम्सन, नो यूज इन नॉकिंग, इट वुड ओनली वॉर्न हिम. एंड नॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे वो उसे वार्निंग लगेगी, चौकन्ना हो जाएगा. फर्स्ट मैन, जिम्सन्स राइट, ही वुड have a chance to make himself invisible. Second man, we will do better to just rush in, take him more by surprise. तो इस तरीके से वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम एकदम से चले जाते हैं बिना नॉक किए और उसको इनविजिबल होने का चांस ही नहीं देंगे और उसको पकड़ लेंगे. Dr. Seuss, very well, courage man, we will capture him. If there is anything to capture, now then, 1, 2, 3, push. और इस तरीके से डॉक्टर क्या कहते हैं कि ठीक है, हम उसे पकड़ते हैं अगर कुछ पकड़ने के लिए होगा तो, क्योंकि वो क्या था, इनविजिबल मैन था, राइट. और इस तरीके उसको, डोर को वो पुश करते हैं. डोर जो है वो ओपन हो जाता है. जिम्सन लाउडली, We have got you now, invisible man. Griffin, oh, my secret is out, is it? क्या मेरा secret out हो गया है? Dr. Seuss, alarmed, I don't see him. First man, where's he? Jimson, look, that bandage is hanging in mid-air. Must be him. Hurry. और इस तरीके से जिम्सन कहता है, देखो उसकी बैंडेज जो है इधर हैंग कर रही है, शायद यहाँ पर ये होगा. सेकेंड मैन, द वॉइस केम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, कि उधर से डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है. फर्स्ट मैन, ही इज़ मूविंग टू फास्ट. ग्रिफिन, लाफिंग विकेडली, इज इट इन फाइट यू वॉन्ट, क्या फाइट करना चाहते हो? फूल्स, यू आर नो मैच फॉर मी, मेरे साथ तुम्हारा कोई मैच नहीं है. हाउ इजिली आई कैन एल्यूड यू, और कैसे मैं तुम्हें धोखा देकर भाग जाऊंगा. एंड इस तरीके से फर्स्ट मैन कहता है, द बैंडेज हैज़ ड्रॉप टू द फ्लोर. सेकेंड मैन, लुक, ही इज टेकिंग ऑफ द अदर वन, कि देखो बैंडेज गिर गई है, दूसरी बैंडेज उठा रहा है. डॉक्टर सुस, वी विल नेवर कैच हिम, वंस ही गेट्स देम ऑफ ही विल बी इनविजिबल अगेन. ग्रिफिन, लाफिंग, देयर, दैट इज द लास्ट ऑफ इट. नाउ कम एंड कैच मी इफ यू कैन.
Fools, all of you. Dr. Seuss, a blow with the poker to teach you to meddle where you are not wanted. और पोकर क्या होती है? जो फायर से आप आग को इधर उधर करते हो, दैट इज द स्टिक. ओके, तो स्टिक से वो क्या कहता है कि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, जो चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा. नैरेटर, देयर वॉज अ शार्प ब्लो एंड डॉक्टर सूस फेल. और एकदम से शार्प ब्लो होता है, हवा चलती है बहुत जोर से और डॉक्टर सूस जो है वो गिर जाते हैं. जिम्सन, he is hit the doctor. देखो उसने डॉक्टर को पॉकर से हिट किया, इस तरीके से जिम्सन बोलता है. एंड ग्रिफिन, आई विल फिनिश यू ऑल बिफोर आई एम थ्रोड. मैं इतनी जल्दी ही बिना सोचे, मतलब आई एम थ्रोड, बहुत जल्दी तुम सब लोगों को फिनिश कर सकता हूँ. यू मे हैव फाउंड आउट माई सीक्रेट बट यू विल नेवर ट्रैक मी डाउन. कि तुम्हें सीक्रेट तो पता लग गया पर मुझे कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे. लाफिंग, यू विल नेवर कैच मी, नो बडी कैन कैच द इनविजिबल मैन, हा हा हा. और इस तरीके से वो डिसअपियर हो जाता है. सो बच्चे, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द इनविजिबल मैन बाय H.G. Wells. About the author, H.G. Wells was an English writer and prolific in many genres, and he wrote more than 50 novels and dozens of short stories. His non-fiction output included works of social commentary, politics, history, popular science, satire, biography, and autobiography. So this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to revise it once again and learn the word meaning. Do the back exercise yourself.